स्टूडेंट्स हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के वो बेसिकली लीड्स करते हैं हमारे रिएक्शंस को जो भी हमारे एनवायरनमेंट में होती है। और इन कंसेप्ट की नॉलेज जो अगर हमें हो जाते हैं तो हम हायर जो कोई भी इंसिडेंट होते हैं साइंस में या कोई भी एक्सीडेंट होते हैं तो हम उनको समझ पाते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या। तो रेट ऑफ रिएक्शन और उनके डबल रेट वगैरह, तो ऐसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मैंने आपको बात की है उसमें भी कैसे वो रेडिएट होते हैं। सो विल डिस्कस। The world's worst civilian nuclear disaster took place when a reactor exploded at the Chernobyl power plant in Ukraine, then part of the Soviet Union. Present-day Belarus received 60% of the initial fallout. The radioactive cloud spread further to cover most of Europe. The Chernobyl nuclear power plant was one of the Soviet Union's most advanced facilities. The first two reactors became operational in the late 1970s. The fourth reactor was the newest, going online in 1983. On April 26, 1986, technicians prepared to test the backup cooling system in reactor number 4, but the routine safety drill went horribly wrong. A nuclear reactor is like a giant steam engine. Uranium fuel rods react to produce a massive amount of heat. That converts water into steam, which drives huge turbines to generate electricity. Control rods are inserted in between the uranium to slow the reaction. And it's crucial for cooling water to be pumped around the core to prevent overheating. But as the test began, almost all of the control rods were removed, and technicians lost control of the flow of coolant. Temperatures soared, and extreme heat began to melt the core. At 1:23 a.m., Reactor 4 exploded. It spewed 8 tons of radioactive debris into the atmosphere. 115,000 people were evacuated from a 30-kilometer zone around the plant. The battle to put out the fires inside lasted for 15 days. More than 500,000 military and civilian personnel were drafted to deal with the accident and its aftermath. 31 of the initial firefighters and plant workers died within days from acute radiation sickness. The toxicity of the radioactive cloud was equivalent to 400 Hiroshima atomic bomb explosions. Crews hastily built a concrete sarcophagus to encase the entire reactor to prevent more radiation from spreading. Inside, there remained 200 tons of radioactive fuel. The remaining 3 reactors continued to operate due to energy shortages in Ukraine. It wasn't until the year 2000 that the Chernobyl complex was completely shut down. With the concrete sarcophagus crumbling, the international community began to build a new confinement structure for Reactor 4. It stands 110 meters tall, higher than the Statue of Liberty, and it's wide enough to fit a ship the size of the Titanic. At a projected cost of $3 billion, construction is scheduled for completion in 2017. One of Chernobyl's iconic red and white chimneys will be dismantled, and the massive steel dome will slide over reactor number 4. The confinement structure is expected to last for at least 100 years. द मिस्टेक ऑफ 3 पर्सन, एक्चुअली हुआ ये था कि सुबह डिस्कस हुआ था कि हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। उनको अलर्ट भी किया था पावर कम्युनिकेशन वालों ने कि आप ये एक्सपेरिमेंट 700 मेगावाट पे नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उनके पास अथॉरिटी थी गवर्नमेंट की तरफ से भी, कोई नहीं हम कर लेंगे जी। रात को एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, जो वहाँ पे जो उनका हेड था उन्होंने कहा नहीं नहीं करो, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा। रात को 125 पे एक्सप्लोजन हुआ, रेडिएशन फैलनी स्टार्ट हुई, रेडियो एक्टिव डिके था। जो फायर ब्रिगेडरी वाले आए थे उन्होंने ग्रेफाइट उठा लिया।
जैसे उन्होंने ग्रेफाइट उठाया, इवन कि उनके दस्ताने पाने के बावजूद भी, ग्लव्स पहनने के बावजूद भी हाथ उनके जल गए, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब उससे पता लगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने खतरनाक होते हैं, कैसे उनकी रेडिएशन फैलती। धीरे धीरे वो जो वहाँ पे काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ, और आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ की जो पेड़ पौधे थे, जो वहाँ की बिल्डिंग्स थी, वहाँ पे रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई थी, और पत्तों वगैरह से भी रेडिएशन वहाँ पे काउंट की गई, कितने टाइम की रेडिएशन यहाँ पे आ रही है, और बिलीव किया गया कि आने वाले 5 साल तक यहाँ पे रेडिएशन फैल सकती है और काफ़ी कैंसर वगैरह बढ़ सकते हैं। आप देखिए यूक्रेन में सबसे ज़्यादा गले के कैंसर पाए जाते हैं, वहाँ पे नेक कैंसर बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ यही गलतियों के कारण। अगर उन 3 लोगों को नॉलेज होती कि आप इस लेवल पे मत करो एक्सपेरिमेंट, पूरी ह्यूमन बींग्स को खतरा हो सकता है, तो शायद ये खतरा ना भी होता। तो अगर हम सर कहें कि हम सिर्फ इन रिएक्शंस को, हम इन न्यूमेरिकल्स को, हम इन सिर्फ जो थ्योरेटिकल पोर्शन हमारे एनसीईआरटी के बुक में गिवन है, अगर उनको हम जस्ट ऐसे ही कर लें तो ठीक है, वो भी एक वे है। लेकिन अगर उनको समझ के करते हैं कि शायद इनका कहीं ना कहीं एक यूजेज ऐसा भी हो सकता है जिससे हम अपनी ह्यूमन काइंड को बचा सकें। कब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकता है, कब रेट ऑफ रिएक्शन आपका हाफ हो सकता है। तो मैं बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। वैलेरी लेगेसोलोव एक साइंटिस्ट था, उसने सारी इंक्वायरी की। उसने कहा कि इन 3 लोगों की गलती थी, और सबसे बड़ी गलती हमारे देश के कि हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ग्रेफाइट की रोड को यूज़ करते हैं, जो कि सबसे चीपेस्ट है, ताकि हमारा पैसा बच जाए, लेकिन उससे हमारे देश को कितना खतरा होगा वो आप देख लो। और आप बिलीव करोगे, वो जो वैलेरी लेगेसोलोव वहाँ पे जो इंक्वायरी के लिए गया था, 5 साल बाद उसकी भी डेथ हो गई थी। क्यों? उसको भी अंदर रेडिएशन आ गई थी। तो बात करते हैं हमारे न्यूमेरिकल की। हाफ लाइफ उसने बताया कि एक रेडियो एक्टिव डिके हुआ, आज से 5,000 साल बाद वो हाफ रह जाएगा एलिमेंट, उसके एलिमेंट जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, सॉरी उसके जो एटम है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल जो था उसके पास 80% ऑफ द 40 कार्बन उसके पास लिविंग ट्री का है। एज आपने बतानी कितनी है ट्री की। तो आप देखिए कि मैंने हाफ लाइफ पीरियड का आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, 0.693 अपॉन के, दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड। एंड यहाँ पे टाइम पीरियड आपको गिवन है। टाइम आप वहाँ से निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर एक्शन से। ए नोट की वैल्यू 100, वहाँ पे आपको ए की वैल्यू 80। रीज़न क्योंकि 80% है। एक्चुअली क्या होता है, आपने ये चीज़ कैसे करनी है, आपने ए नोट हमेशा 100 मान के चलना है, क्लास हमेशा 100 है। अब वो कहते हैं मान लो 20% रिएक्शन हो गई, तो 100 माइनस 20 80। वो आपको कहता है 70% रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो 100 माइनस 70 30, ऊपर 100 ही आएगा। वो आपको कहे कि 40% रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी, तो 100 माइनस 40 60। अब उसने कहा कि आपकी 80% रिएक्शन कंप्लीट हुई, तो 100 माइनस 80 कितना आएगा, सॉरी हैड ओनली 80%, तो आपके पास बचा, यानी कि 20% चला गया, तो 100 माइनस 20 80 या सिंपल 80। के की वैल्यू वहाँ से आप यहाँ आपके पास के की वैल्यू पुट करके आपके पास जो आंसर आ रहा है 1845 ईयर, यानी 1845 ईयर, इतना पुराना ट्री है। आप सोचो 1845, 1800 साल पुराना ट्री की हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। सो जितने भी आर्कोलॉजिस्ट हैं जो ये बताते हैं आपको कि ये इतनी चीज़ पुरानी है। अब जैसे इजिप्ट में कई पुरानी जो हम ममीज वगैरह जो फाइंड करते हैं वहाँ पे, या जो पिरामिड्स की में वहाँ पे हमें फाइंड होते हैं पुरानी चीज़ें, तो हम बताते हैं कि ये 5,000 साल पुरानी है जी, 6,000 साल पुरानी है। वो इसी कैलकुलेशन के थ्रू आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 17 आप ट्राई करोगे। ये आप रहने देना क्योंकि एंटी लोग की आपको बाद में बताएंगे। फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के लिए शो डैट की टाइम रिक्वायर्ड, ये इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस न्यूमेरिकल को लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस।